जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरु महाराज जी अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना ही शुक्राना। गुरु जी ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋਮਵਾਰ। ਸੋ 24 ਨਵੰਬਰ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਸੋ 10:20 ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਸੋ ਜੋ ਬੁਲਵਾਨਗੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੁਲਵਾਨਗੇ, ਜੋ ਬੋਲਾਂਗੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ, satsang ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਦਾ, ਛਣ ਛਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ, ਤਿਤਲੀਆਂ, ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਚੂਹੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਚ ਰਾਜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਚ ਰਾਜੀ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ satsang ਤੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਬਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ, ਕਦੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਨ ਤੇ ਕਦੇ VIP ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕੋਈ ਹਾਰਮਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੱਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਸਨੇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।
ਇਸ ਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਲੀ ਵੀ ਥਾਂ ਨੀ ਨਾ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਰ ਪੂਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸੂਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੂਪ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਨੇਕ ਟਾਈਪ। ਹਿਲਦਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਨੇਕ ਹਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਹਾਰਮਫੁਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੂਪ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਡ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਾਰਮਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਤਿਤਲੀਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਬਿੱਲੀ ਚ, ਇਹ ਚੂਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਆ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਰਮਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੋ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਡਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੋਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਤਾਂ ਮੋਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਲੂ ਦੇ, ਮੋਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਓਰੀਜਨਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੋਰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਬਿੱਲੀ ਦੇ, ਚੂਹੇ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੈਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਈਵਨਿੰਗ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਡ ਬੜਾ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੈਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਈਟ ਤੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੋਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਕ ਕਰੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਰਕ ਚ ਜਦੋਂ ਵੋਕ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੈਰ ਕਰਾਂ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਾਸੰਗ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਨੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਸੰਗਾਂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਸੰਗ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਟਰਫਲਾਈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਲਣਹਾਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਲਣਹਾਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਲਣਹਾਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆਏ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਬ ਉਸकी ਤਰੱਕੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਛੋੜ ਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਹਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਚਾਂਦ ਮੂਨ ਬਣ ਗਿਆ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਫਲਾਵਰ ਬਣਿਆ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋਤ ਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੋਕੇਟ ਸਵਰੂਪ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰ ਚ ਵੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ, ਘਰ ਚ ਵੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ, ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਸੰਗ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਚ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਟਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਕਟਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ satsang ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚਿੰਤਨ मैसेज आया संगत जी, चिंता नहीं करनी, चिंतन कर, तेरे कामों को पूरा करने तेरे गुरु जी करेंगे, बस तू सिमरन शुकराना कर हर पल। सो गुरु जी मैं ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਛੁੱਟੇ ਨਾ ਬਸ, ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਚ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਕੱਲ ਹੁਣ ਸੰਡੇ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇੰਨੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ 5:30 ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਆ ਘਰੋਂ, ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੱਲ 6 ਹੀ ਵੱਜ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਵੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਲਸ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰੈਸਟ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ 5 ਵਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਪਾਠ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਛੱਡਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੁੱਟਣ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਉਹ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕੱਟਦਾ, ਉਹ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕੱਟਦਾ, ਉਹ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ बड़ा कहती है चमत्कार नहीं दिखाते, बोल कौन सी इच्छा सबसे पहले पूरी करूं, जो चाहती है वही मन में सोच, शुक्राना लिख। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। कहते तुम बस अपने भगवान पर भरोसा रखो, कहाँ से देगा कैसे देगा ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। सो बहुत बहुत शुक्राना। कितना अच्छा मैसेज है संगत जी गुरु जी का। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖੀ ਦਿਖੀ ਆਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਡੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖੀ ਦਿਖੀ ਆਜ ਫਿਰ ਦਿਖੀ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਵਰਸ਼ਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਪੇ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਅਰਮਾਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ ਬਸ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਚਿੰਤਾ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਲਥ ਤੇ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਘਰਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰਵੇਗੀ। ਤੇ ਬਸ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਧੂ, ਗੁਰੂ ਜੀ satsang ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੰਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਕਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਸ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਾਲਣਹਾਰ ਨੇ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਸਾਸੰਗਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਸੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ,
ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਰਮਾਨ ਆਪੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਏ ਰੱਖੀਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬੇੜਾ ਆਪੇ ਪਾਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰਵੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ satsang ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਅੱਛੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ satsang ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ satsang ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ satsang ਰੋਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ satsang ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ satsang ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। मेरा सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज रात्रि वेला में सोने से पहले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और टाइम है अभी 10:38 और 24 नवंबर का ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं गुरु जी के श्री चरणों में गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ में शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, रोज ही नेगेटिव मैसेज आते हैं, रोज ही बेटे को लेकर के, बेटी पर खतरा है, बेटे पर तंत्र मंत्र किया हुआ है, ये सारे मैसेज रोज ही आ रहे हैं तकरीबन। और गुरु जी इन सबको सुना सुना के हमारे कष्ट काट रहे हैं निरंतर। गुरु जी, मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। आप परिवार को, बेटे को, बेटी को ये सत्संग सुना करके सेव कर रहे हो, उनके कष्ट को ख़त्म कर रहे हो। और गुरु जी, बहुत बहुत कृपा है आपकी, बहुत मेहर कर रहे हो आप, बहुत दया कर रहे हो मेरे मालिक। सिर्फ सत्संग सुना करके बड़े बड़े कष्टों से निजात दिला देते हो मेरे गुरु पिता। बहुत बहुत शुक्राना है आपका, अनंतम 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 शुक्राना है। पति अंकल के लिए भी बहुत बड़ा एक सत्संग आ रहा है कि उनके भी दुर्घटना हो सकती है, तो दुर्घटना होने की संभावना है। और सत्संग सुनने से उनके चारों ओर उनका जो रक्षा कवच है वो बन जाएगा। तो इस तरीके के भी सत्संग आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। गुरु जी, आप बहुत चारों तरफ से सभी बेटे अंकल को, बेटी अंकल को, पति अंकल को, सबको सबको सबकी रक्षा कर रहे हो मेरे गुरु जी, सबके कष्ट काट रहे हो।
मेरे गुरु पिताजी, बहुत बहुत शुक्राना है मेरा आपका, अनंतम 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 शुक्राना है मेरे मालिक। और कुछ एक बहुत अच्छे सत्संग भी आ रहे हैं कि मैं तुम्हारी बुरी नज़र उतार रहा हूँ, परिवार का जो बड़ा संकट है टल जाएगा, सत्संग को सुनो और मैं तुम्हारे परिवार की सुरक्षा का पहरा बनकर खड़ा हूँ। गुरु जी के इतने पॉजिटिव मैसेज देख करके बहुत हिम्मत आती है, बहुत सुकून मिलता है कि गुरु जी हर समय हर वक्त हमारे परेशानी में खड़े रहते हैं और हमारी परेशानियों को दूर करने की निरंतर कोशिश करते हैं। मेरे गुरु मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्रभु। आप कितने इतने दयावान हैं, कितने हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे लिए कितने फ़िक्रमंद हैं मेरे गुरुजी। और हम आपको जितना आप हमारे लिए करते हैं मेरे गुरु पिताजी, हम उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं दे पाते मेरे गुरु पिताजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। जो भी हम कर पाते हैं गुरु पिताजी शुक्राना, उसको कबूल कीजिएगा मेरे गुरुजी। हम पर हमसे अगर कोई चूक हो जाती है, कोई कमी रह जाती है शुक्राना करने में, तो हमें माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, क्षमा कर दीजिएगा। इसी तरह बहुत से सत्संग आ रहे हैं गुरुजी के, और बहुत अच्छे भी हैं और पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। तो गुरुजी बहुत सारे इन जो भी आप हमारी रक्षा कर रहे हैं, उन सब के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और एक ये आ रहा है कि तेरे पीछे जो खेल चल रहा है उसको तू नहीं जानती, मैं जानता हूँ। जो तुमको अपने दिखाई देते हैं वह सब वही चालें चल रहे हैं। सत्संग सुन, सब समझ आ जाएगा। सब सच सामने आ जाएगा। तो वो मैं सत्संग सुन चुकी हूँ गुरुजी। अपने ही होते हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं मेरे गुरु पिताजी, और ऐसे लोगों से ही गुरु पिताजी आप हमको दूर कीजिए, हमारी लाइफ से दूर कीजिए। मेरे बच्चों को सेफ कीजिए, मुझको सेफ कीजिए, मेरे पति अंकल को सेफ कीजिए। जो लोग हमारे लिए सही नहीं हैं उन्हें हमारी ज़िंदगी से दूर कर दीजिए मेरे मालिक, दूर कर दीजिए। आप जानी जान हो, हम तो गलतियां कर देते हैं, हम पहचान नहीं पाते कौन हमारे लिए कैसा है कैसा नहीं गुरु मालिक, लेकिन आप जानी जान हो प्रभु। आप हमारे लिए जो ठीक नहीं है गुरु मालिक, उनको हमारी लाइफ से बिल्कुल दूर कर दीजिए मेरे प्रभु। और अपनी कृपा दृष्टि हम पर ऐसे ही बनाए रखिए मेरे प्रभु, ऐसे ही बनाए रखिए। गुरु जी, आपका बहुत ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि कोई बेटी पर भी बहुत परेशानी वाले मैसेज आ रहे हैं, पुत्र पर भी परेशानी वाले मैसेज आ रहे हैं गुरु जी। और ये मैसेज लगातार ही आ रहे हैं, लगातार ही आ रहे हैं और काफ़ी दिन से लगातार ही हैं। तो गुरु जी, आप निरंतर हमारी रक्षा कर रहे हैं, आपका मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। सत्संग सुनने पर ही आप हमारे सारे बड़े बड़े कष्टों को काट रहे हैं, परिवार को सेफ रखे हुए हैं, पूरी तरह से सुरक्षित रखे हुए हैं मेरे मालिक। आपका तहे दिल से शुक्राना है मेरे प्रभु, बहुत बहुत शुक्राना है। आप जो हमारे लिए कर रहे हो उसके बदले में हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं मेरे प्रभु, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हाँ गुरु जी, हमारे से बहुत गलतियाँ होती हैं मेरे प्रभु, बहुत गलतियाँ होती हैं, और आप हमारी सारी तमाम गलतियों को माफ़ करते हो और हम पर अपनी कृपा, अपनी मेहर बनाए रखते हो मेरे प्रभु। आप जब से हमारी लाइफ में आए हैं मेरे मालिक, बहुत हमें सुरक्षित महसूस होता है और मेरे को चैन की नींद भी आती नहीं। तो पहले मैं रातों रात में सो नहीं पाती थी, बैठी रहती थी, रोती रहती थी गुरुजी। जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हैं, बहुत सुकून की ज़िंदगी नींद देते हैं मेरे मालिक, बहुत सुकून से सोते हैं। और गुरुजी, जो भी है शुक्राना सत्संग में जैसा भी कर पाती हूँ मेरे गुरु पिताजी, इसको स्वीकार कीजिएगा। इसमें अगर कोई गलती हो जाती है तो मुझे माफ़ कीजिएगा मेरे प्रभु। गुरुजी, आप जैसे आप बचा रहे हैं परिवार को, ऐसे ही बचाते रहिए मेरे मालिक। आप हमारा साथ, हमारा हाथ मत छोड़िए मेरे गुरु पिताजी। हमारा कोई नहीं है आपके सिवा प्रभु, आप ही हो हमारे सब कुछ प्रभु।
आपके बिना हमारा कोई नहीं है मालिक। जो भी तंत्र मंत्र करते हैं प्रभु, आप देखिए, हमने सब कुछ आपके भरोसे छोड़ दिया है। आप भी उनका निपटारा कराइए, जैसे भी आपको जो ठीक लगे वो कीजिएगा मालिक। आप कहते हैं कि आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और तुम कुछ मत करो और उनको माफ़ कर दो। हमने सब माफ़ कर दिया मेरे गुरु पिताजी, और आप पर छोड़ दिया है। अब आप देखिए, आप जानिए, जो आपको ठीक लगता है वैसा कीजिएगा मेरे गुरु पिताजी। हमने सब कुछ आप पर सौंप दिया है। और गुरु पिताजी, हमसे अगर कोई, मेरे से गलती हो जाती है, मेरे से कोई भूल हो जाती है, तो मैं तहे दिल से उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ मेरे मालिक। गुरु पिताजी, बहुत बहुत हमारे को, जितना आप हमारे को प्यार दे रहे हो, जितने हमारी रक्षा कर रहे हो, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ मेरे मालिक। अपने पति अंकल की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। उन पर जो भी वशीकरण है, जो भी बुद्धि को बांधते हैं मेरे गुरु पिताजी, उन सबको ठीक कीजिएगा। आपका एक मैसेज भी आ रहा था कि आप पूरे परिवार को बांध रखा है और बेटे पर भी वशीकरण किया जा रहा है मेरे मालिक। सब कुछ अब आपके भरोसे है, आप जानी जान हो। आप देखिए प्रभु, हमने तो सब कुछ आप पर, आपको पूरा सरेंडर कर दिया है। सब कुछ, बेटे, पति, बेटियां, जमाई, सब कुछ आपके श्री चरणों में है। जैसा आप रखोगे ऐसे रहेंगे मेरे मालिक। हमारी भूलों को माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए प्रभु। अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिएगा मेरे मालिक। और मेरे दोनों बेटियों की तरफ से, जमाई अंकल की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। बेटी की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना है प्रभु। उसको सही समझ दीजिए, सही बुद्धि दीजिए। गलत राह पर चल रहे हैं तो उसको ठीक राह पर लाइए मेरे मालिक। आप ही सब कुछ करेंगे। हमने सब कुछ आप पर सौंप दिया है मेरे प्रभु, और बहुत हल्कापन महसूस करते हैं गुरु जी आप पर सब कुछ सौंप कर। क्योंकि आप जो करोगे बहुत अच्छा करोगे गुरु जी। हम गलती कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत जानी जान हो। आप कुछ भी गलत नहीं होने दोगे, कुछ भी गलत नहीं होने दोगे प्रभु। जो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा वही आप करोगे मेरे गुरु जी। आपका तहे दिल से शुक्राना है मेरे प्रभु, बहुत बहुत शुक्राना मैं करती हूँ आपका। और मेरे दोनों बेटियों की तरफ से और जमाई की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना है। मेरी तरफ से आपका अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना है मेरे मालिक। हे प्रभु, मेरे से जो भी गलती हो जाए उसे क्षमा करना। सत्संग शेयर करने वाले राज अंकल जी को भी बहुत बहुत ब्लेस करना। उनको भी बहुत तरक्की देना, उन्नति देना। उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी सात संगत जी ਨੂੰ जय गुरु जी। ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी मुंबई तो ਅੱਜ दिन है सोमवार ਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਦਾ डेट है 24 ਨਵੰਬਰ। मैं गुरु जी ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ संध्या वेले गुरु जी की जोत जगा के गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ आज शुक्राना सत्संग शुरू करांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी। आप जी का अनंतम अनंतम बेअंत बेअंत लख लख शुक्राना है गुरु जी महाराज जी। हर श्वास तो आप जी का शुक्राना है। आप जी की बेटी और मेरे सारे परिवार
की तरफ से गुरुजी हर श्वास का, हर पल का शुक्राना ही शुक्राना है। और संगत जी आज सोमवार के दिन गुरुजी महाराज जी ने अपनी बेटी ਨੂੰ 3 सोमवार ਨੂੰ कड़ा प्रसाद गुड़ वाले कड़ा प्रसाद बनाने की, भोग लगाने की सेवा गुरुजी महाराज जी ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ के करवाए। तो आज तीसरा सोमवार का दिन था और आज सुबह मैंने नहा धो के गुरुजी महाराज जी के आगे कड़ा प्रसाद का भोग लगा के जब मैं बैठी जो और गुरुजी के स्वरूप के सामने, तो संगत जी जैसे मैंने अपने पिछले सारे शुक्राना सत्संग में ये शेयर किया है कि गुरुजी महाराज जी ने अपनी इस बच्ची को इतना ब्लेस किया है कि मेरे घर के पास हर मंडे शाम को 5 बजे एक अंकल जी, संगत अंकल जी आंटी जी के घर में सत्संग की बहुत प्यारी सेवा वो करते हैं। और गुरुजी अपनी बच्ची का हाथ पकड़ के वहाँ हर मंडे ले जाते हैं। मैं वहाँ बैठ के गुरुजी का शब्द गुरबानी सुन के और चाय लंगर प्रसाद ग्रहण करके गुरुजी दा सांस शुक्राना करके बहुत बहुत ब्लेसिंग्स जैसे मुझ पे, मेरे परिवार पर, सारे मेरी अरदास है सारे संगत परिवार पे गुरुजी हमेशा बनाए रखें। सो संगत जी मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है कि हर बार की तरह जैसे मैंने आज भी शाम को जाना था, तो जैसे मैंने कड़ा प्रसाद का भोग लगा के गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के तो शब्द कुर्बानी लगाए अपने फ़ोन पे, तो अचानक ही लाइक 5 मिनट ही हुए होंगे और मुझे बिल्कुल मेरी तबीयत ऐसी, जैसे कभी होता है कि सुबह उठ के आपको कभी ऐसी कोई दर्द हो रही हो, पेन हो रही हो या कुछ ऐसी तबीयत ख़राब लग रही हो, तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था संगत जी। और आप यकीन करेंगे बस 5 मिनट में ही मुझे बहुत इतनी ऐसे पेन होनी शुरू हुई जैसे मैं बता भी नहीं सक रही हूँ संगत जी। और ये आज सुबह की बात है और मेरे हस्बैंड अंकल जी अपने ऑफिस के लिए निकले और मेरी बेटी आंटी जी, हालांकि आज उसकी स्कूल में छुट्टी थी, वो घर पे ही थी और वो सो रही थी, अभी वो उठी नहीं थी। और पर जैसे मुझे ये थोड़ी थोड़ी दर्द होनी शुरू हुई मेरे पेट के नीचे की तरफ, तो मुझे ऐसे सत्संग में संगत जी के जो मैं सुनती हूँ गुरुजी की टेलीपैथी से मैसेज, तो मुझे ऐसे मैसेज आ भी रहे थे कि बेटी 1 मिनट भी टाइम वेस्ट मत कर, हॉस्पिटल जाने की नौबत आ जाएगी। और मुझे पेट से रिलेटेड बहुत काफ़ी टाइम से सत्संग आ रहे थे और मैं जितने हो सके संगत जी मैं ये सारे सत्संग सुनती भी हूँ जो गुरुजी महाराज जी के बहुत प्यारे, इतने पॉजिटिव भी जो सत्संग आते हैं वो तो मैं सुनती हूँ, बट मतलब कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर मेरे को थोड़ी सी मैंने हालांकि पूरा गुरुजी महाराज जी पे इतना विश्वास है और पूरी तरह से सरेंडर किया हुआ है मेरे खुद के और मेरे पूरे परिवार के सभी बातों के लिए। मेरे को गुरुजी पे इतना विश्वास है संगत जी कि बस गुरुजी हैं तो सब संभाल लेंगे, सब ठीक ही होगा। और जैसे गुरुजी महाराज जी जानते हैं उनकी ये बच्ची काफ़ी, मैं और मेरे हस्बैंड अंकल जी अपने हेल्थ को लेके केयरलेस हैं, जो कि एक पॉइंट तक, एक हद तक सही भी नहीं है संगत जी, बट फिर भी हमको काफ़ी ऐसे है कि कुछ ना कुछ अगर हो तो हम लोग काफ़ी अवॉइड करते हैं कि डॉक्टर्स के पास जाएं, टेस्ट करवाएं या कुछ दवाइयाँ लें। तो ये जब मुझे दर्द होनी शुरू हुई तो मुझे ऐसे लगा कि कोई नहीं अभी ठीक हो जाएगी। सो 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए और करते करते ये दर्द मेरी इतनी बढ़ गई कि मुझसे
बैठे नहीं जा रहा था और मैंने हाथ जोड़ के मत्था टेक के गुरुजी का मंत्र जाप करके मेरा ऐसा हो गया दर्द से हाल कि मुझे लगा कि मुझे अभी थोड़ा सा लेटना पड़ेगा। और संगत जी, देखते देखते 10-15 मिनट में मेरी दर्द इतनी बढ़ गई कि मैं लेट भी नहीं पा रही थी। और मतलब ऐसे लिटरली लाइक जैसे वो हमें टेलीपैथी में मैसेज आते हैं कि मछली की तरह तड़पेगी अगर ये सत्संग अभी नहीं सुना। मतलब कि मतलब मैं मेरे को ऐसे हो रहा था कि समझ भी नहीं आ रहा था कि ये दर्द अचानक से एकदम से शुरू कैसे हुई और इतनी बढ़ती क्यों जा रही है। और मैंने गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप मन में भी कर रही थी और मेरा फ़ोन मेरे पास था। तो मैंने जैसे यूट्यूब में हमेशा हर रोज़ हर वक्त मेरे गुरुजी के शब्द गुरबानी और मंत्र जाप जो 108 बार है तो वो चलता ही रहता है। तो मैंने वो प्ले किया और मैं गुरुजी महाराज जी से अरदास करने लगी कि हालांकि मेरा रोना भी निकल रहा था और मुझे इतनी भी नहीं हिम्मत हो रही थी कि मैं दूसरे रूम में अपनी बेटी आंटी जी को उठाऊं या उससे वो भी काफ़ी अभी छोटी है तो वो मुझे इस हालत में देख के डर जाती। तो मैं मन में बहुत पाठ करते हुए अरदास करते हुए मैं गुरुजी महाराज जी से यही अरदास करी थी कि प्लीज़ गुरुजी जो मुझसे कोई जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती हो गई है उसके लिए मेरे को माफ़ कर दो। और अगर कोई बहुत बड़ा कष्ट है जो आप ये छोटे सी दर्द में काट रहे हो तो मुझे इतनी हिम्मत दो गुरुजी महाराज जी कि मैं ये सहन कर सकूं और प्लीज़ हाथ रख के अपनी बच्ची को ठीक कर दो। क्योंकि आप यकीन मानेंगे संगत जी, उस दर्द में भी मेरे मन में यही आ रहा था कि आज शाम को, आज मंडे है, सोमवार है, मुझे आज शाम को गुरुजी महाराज जी के सत्संग पे जाना होता है तो ऐसे तबीयत में मैं कैसे जा पाऊँगी। और गुरुजी जानते हैं उनकी ये जल्दी बेटी बच्ची कहीं और जाए नहीं जाए, बट मेरे को हर मंडे को गुरुजी महाराज जी के सत्संग पे जाना संगत जी मतलब जैसे मैं वेट कर रही होती हूँ कब मंडे आए और मैं वहाँ जाके गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग्स तो हर वक्त है हमारे साथ, पल पल हैं, घर में भी हैं, हर जगह हैं। तो संगत जी एक टाइम ऐसा आया कि वो दर्द मतलब जैसे मेरी जान ही निकल रही थी और मेरे को बस ऐसे लगा कि अब कुछ भी हो जाए इससे पहले तो मुझे मेरे हस्बैंड अंकल जी को कॉल कर देना चाहिए कि उनसे मैं एक बार बात कर लूँ। तो मैंने उनको जब फ़ोन लगाया उनने मेरी आवाज़ सुनी और वो तुरंत ही उनने कहा कि अगर हो सकते तो हिम्मत करके एक पेन किलर ले लो और मैं ऑफ़िस से अभी निकल के घर आ रहा हूँ। और मेरे हस्बैंड अंकल जी भी जानते हैं कि कुछ चीज़ों को लेके मैं बहुत लापरवाह हूँ। जैसे मतलब कि मैं लाइक पानी बहुत कम पीती हूँ तो वो हमेशा मुझे वही कहते हैं कि आप पानी ज़्यादा पिया करो। और थोड़े दिन पहले ही संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल जी के जो बहुत ही लाइक क्लोज़ फ्रेंड हैं उनने सेम उनकी ऐसी हालत देखी थी कि वो भी ऐसे ही पेन में बहुत तड़प के बहुत होके तंग होके मेरे हस्बैंड अंकल जी को उनने कॉल किया था क्योंकि उनकी फैमिली यहाँ नहीं है, वो अकेले यहाँ हैं। तो उनको मेरे हस्बैंड अंकल जी को उनको ऐसी हालत में जब डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ा तो उनको पेन किलर के इंजेक्शन लगाने के बाद भी उनको ये दर्द ठीक नहीं हुआ और करते करते उनको हॉस्पिटल में एडमिट करने की नौबत आ गई थी क्योंकि उनकी किडनी में उनके टेस्ट में काफ़ी इन्फेक्शन और स्टोन आए थे तो उनको 4-5 दिन हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा था। तो ये सुन के तो मेरे हस्बैंड अंकल जी के भी कहीं ना कहीं ध्यान में आया कि कहीं ऐसी कोई बात ना हो जाए। तो संगत जी आपको मैं आप यकीन करेंगे कि ऐसी हालत में भी मैं कंटिन्यूसली मैंने
मुँह से बोले जाए नहीं जाए, मेरे मन में गुरुजी का मंत्र जाप ही चल रहा था और मैं फ़ोन पे भी चल रहा था। और मैंने एक बार जब अपने हस्बैंड अंकल जी को कॉल करके बता दिया, तो लेटे-लेटे उस दर्द में मैंने हिम्मत करके गुरुजी का एक मैंने डब्बी में चंदन तिलक और गुरुजी का जो जल प्रसाद मैं रखती हूँ, वो मिक्स करके मैंने एक छोटी सी डब्बी में रखा है। तो पता नहीं मेरे में कैसे हिम्मत आई, मैंने वो जहाँ मैंने रखी हुई थी वो उठाई और मैंने अपने गुरुजी का नाम अरदास करते हुए, मंत्र जाप करते हुए, अपने जहाँ दर्द हो रही थी वहाँ पर लगाते हुए और यही अरदास की कि प्लीज़ ठीक कर दो मुझे गुरुजी महाराज जी, मुझे प्लीज़ ठीक कर दो। और वो लगाते लेटे मेरी कब आँख लग गई, मेरी नींद लग गई उस दर्द में। और मुझे पता भी नहीं चला कि कितनी देर मेरी नींद लगी। तो मेरे हस्बैंड अंकल जी जब घर आए तो उनने देखा कि मैं ऐसे लेटे हुई हूँ और तब तक जब तक मेरी आँख खुली उनके आने पे, क्योंकि मेरे 2 पेट्स हैं कैस्पर के ऊपर, वो इनके आने पे बहुत हो जाते हैं एक्साइटेड। बट ऐसे टाइम पे वो मेरे साथ ही मेरे बेड पे ही मेरे साइड में ही दोनों मेरे पेट्स भी मैं लेटे से सो रहे थे, साथ में बैठे हुए थे। तो मेरी आँख खुलते ही मेरे हस्बैंड अंकल जी ने आके बोला कि आपको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। तो आप यकीन मानिए संगत जी, मेरा वो दर्द मतलब ऐसे ठीक हुआ कि जैसे मुझे कुछ जैसे दर्द हुआ ही नहीं हो। और उनमें हस्बैंड अंकल जी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी बुरी हालत में आपने जब कॉल किया, आप रो रहे थे, आपसे बात नहीं हो रही थी, तो अभी आप कह रहे हैं कि दर्द नहीं है। बट मैं आपको बता रही हूँ जैसे संगत जी, वो दर्द ऐसे ठीक किया मैं गुरुजी महाराज जी ने अपनी इस बच्ची पे इतना अपना प्यार आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स दी। और ये सब होते दोपहर के लाइक 3 बजे थे और उनने मेरे लिए चाय बनाई मेरे को खाने के लिए। मेरे हस्बैंड अंकल जी ने बोला कि आपने कुछ खाया नहीं खाया, और मेरे ध्यान में अभी भी बस यही आ रहा था कि गुरुजी महाराज जी ने मेरी अरदास सुनी है और मेरे दर्द ठीक किया है। तो मैं शाम को जो सत्संग है 5 बजे का, हमारे घर के काफ़ी पास है, मेरे को वहाँ जाना है। और अगर मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी को कहा, पता नहीं वो सुन के कहीं ऐसे ना हो जाए परेशान कि अभी थोड़े टाइम पहले आपकी तबीयत इतनी ख़राब थी, आप कैसे सत्संग पे जाएंगे। बट ये तो गुरुजी महाराज जी का प्यार है, उनका आशीर्वाद है कि संगत जी, मुझे नहीं पता कहाँ से मुझ में इतनी हिम्मत आई और मैंने बिना कुछ सोचे अब वहाँ हमारे घर के पास के सत्संग पे जाने के लिए चेंज करके मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी और मेरी बेटी आंटी जी बैठे थे, वो हैरान हो गए। और मैं बोला कि गुरुजी महाराज जी ने अपनी बच्ची की अरदास सुनी है और उनने मेरी दर्द ठीक किया है और मुझे हिम्मत भी दे रहे हैं, तो मुझे जाना है और मेरे को सत्संग पे जाके गुरुजी का शुक्राना करना है, जो कि मतलब मैं घर पे भी करूँगी और हर वेले करते हैं, श्वास करती हूँ। और संगत जी, आप यकीन मानेंगे कि मैं अभी बस थोड़ी देर पहले ही गुरुजी के सत्संग जाके वहाँ शबद गुरबानी, लंगर प्रसाद, चाय सब करके मेरे हस्बैंड अंकल जी मुझे घर वापस लेकर आए हैं। मैंने संध्या वेले की जोत जगाई और मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने अभी इस वक्त बैठ के शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। और गुरुजी महाराज जी, आप जी दा अनंतम 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 शुक्राना है, श्वास शुक्राना है, जितना शुक्राना कम है गुरुजी महाराज जी। और मेरी बस यही अरदास है कि जैसे आपने अपनी बच्ची को ब्लेस किया, सारे संगत परिवार को भी हमेशा हमारा हाथ पकड़े रहना, हमें अपने चरनी शरणी लगाए रखना, हमें अपने वचनों पे चलने की दात बख्शना। और हमसे जाने जाने में जो भी गलतियाँ होती हैं अपने नादान नासमझ बच्चे समझ के, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो गुरुजी महाराज जी। और मेरा आज का ये शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप से यही विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मैं गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सरबत दा भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें बीमारियां दूर करने का शुक्राना, सुख शांति सुकून चैन खुशी की जिंदगी जीने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, अपनी चरनी शरनी लगाने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी, जो आपका परिवार है, आपके चरणों में कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, मैं नहीं जानती मुझे क्या हो गया है, कौन सी नेगेटिविटी ने जकड़ा हुआ है, क्या है, मैं नहीं जानती कुछ भी। लेकिन मन बड़ा उदास, बड़ा बेचैन, बड़ा अजीब सा रहता है। मैं नहीं जानती, गुरु जी आप जानते। फिर गुरु जी का उसी पल मैसेज आ जाता है। कई बार हमें लगता है कि हम टूट चुके हैं, लेकिन दूसरे ही पल फिर मैसेज आता है कि नहीं, हिम्मत नहीं हार, तेरा गुरुपा तेरे नाल है, तू गुरुपा दा बच्चा है। सच में संगत जी, फिर मोटिवेशन मिलती है। फिर गुरु जी कहते हैं कि तू चिंता मत कर, तू घबरा मत, मैं सब संभाल लूंगा। वो तो गुरु जी मुझे पता है, आपने ही संभालना है, पर मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे आप संभालिए, मुझे आप संभालिए गुरु जी, मुझे आप रास्ता दिखाइए, मुझे आप मंजिल तक पहुंचाइए। मैं कुछ नहीं जानती। मेरा रास्ता भी आप है, मेरी मंजिल भी आप है। आप ही दिखाइए, आप ही बताइए, आप ही समझाइए, आप ही पहुंचाइए। गुरुपा प्लीज, गुरुपा मेरी मदद कीजिए, मेरे अंग संग सहाय रहिए, मेरी रक्षा कीजिए। मेरे और मेरे परिवार दी, जो आपका परिवार है गुरु जी, इन सबकी रक्षा कीजिए और मार्गदर्शन कीजिए। सच में मुझे सत्संग करना भी नहीं आता। दिमाग ऐसे डल हुआ पड़ा है कि कुछ समझ में नहीं आता, क्या बोलूं क्या ना बोलूं, क्या
बस आपने ही देखना है गुरुपा। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੋਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੰਕਟ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਸੁੱਖ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਰਗ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਸਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਸਾਣਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। गुरु जी, जिसकी शादी नहीं हो रही उसकी शादी हो जाए, जो अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी ब्लेस करना। गुरु जी, अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक होगी हो तो क्षमा करना। संगत जी, आप भी क्षमा करना। इसी के साथ नए सत्संग की तैयारी के साथ अमृत वेला में आऊंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी।